Welcome, Namaste. So today we are starting with one of the most important chapters from Ashtanga Hridayam in relation to the quantity of food to be taken and what are the negative and positive impacts of the same and related content. The name of the chapter is Matra Shiti Adhyaya. This is the eighth Adhyaya in Ashtanga Hridayam Sutrasthana. The similar information is also available in the Charaka Samhita, that is Sutrasthana 5th chapter. Name is also the same, but the content is slightly different because Acharya Charaka, while explaining the Matra Shiti Adhyaya, goes ahead with the certain other topics by applying Prasanga Tantra Yukti. But Acharya Vagbata stuck on to the topic of Matra Shitiya and only very limited related topics he explained. For a first professional BMS student, this chapter is very important, and especially the Ashtanga Hridayas chapter is one of the most important chapters for all purposes. Could be examination, it could be the, you can say, clinical practice. अगर आपको कोई MCQ रिलेटेड क्वेश्चंस बनानी है तो भी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से देखिए, ध्यान से सुनिए. अगर कोई भी डाउट है तो आप जल्दी उसको क्लैरिफाई करके आगे जाइए. सो दिस चैप्टर इज हैविंग ऑलमोस्ट 55 श्लोक, इसलिए हम इसको एक क्लास में खत्म नहीं करेंगे, इसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे. So this class is about the introduction part, that is the part 1, where we'll cover the initial 9 to 10 shloka. So if you're ready, we'll start with the actual topic, that is the Matra Shitiyam Adhyaya from Ashtanga Hridayam. As you know, it is a part of Samhita Adhyana syllabus, क्योंकि संहिता अध्ययन में ही दोनों सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं. चरक संहिता के सूत्रस्थान के फर्स्ट 12 चैप्टर्स एंड अष्टांग हृदय 1 to 15 ऑफ सूत्रस्थान. जहाँ पर भी ज़रूरत है आपको समझाने के लिए कुछ टीकाओं का भी मैं इस्तेमाल करूँगा. That is only to make you understand. No need to get worried or if you're not able to remember that. So if you see the content from examination point of view, this is the chapter number 8 and the syllabus point number is 9. So all three questions are possible. MCQ is definitely possible. 1 mark is sure, and one 5-mark question also possible, and one 10-mark question also possible. A very important topic, especially from even examination point of view. So this itself is more than sufficient. Why you have to study this in a लाइक प्रॉपर मैनर. यहाँ पर आप देख सकते हैं MCQ में क्वेश्चन नंबर जो 5वां होगा वो इसी चैप्टर से होगा. एंड 5 मार्क के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये है आपको टॉपिक नंबर 9. सो टॉपिक नंबर 9 जहाँ पर भी है वहाँ पर आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा. सो वी हैव इन द पार्ट ऑफ सिलेबस पॉइंट नंबर 2, आई मीन दी एग्जामिनेशन पॉइंट नंबर 2, वहाँ पर आपको टॉपिक नंबर 9 अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चैप्टर 8. एंड इवन इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यू कैन सी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा 4th क्वेश्चन टॉपिक नंबर 9, दैट इज अष्टांग सूत्र 8. सो ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस आर देयर. सो इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए. चैप्टर का नाम है मात्रा शिति अध्याय. फर्स्ट थिंग, व्हाई इट इज मेंशन्ड हियर आफ्टर अ पर्टिकुलर चैप्टर. आचार्यों के द्वारा जो भी संहिता लिखा गया है, कहीं ना कहीं जो अध्यायों का क्रम है लॉजिकल रीजन के साथ ही लिखा जाता है. इट इज नॉट दैट रैंडमली दे चूज द नेम ऑफ द चैप्टर. नो, there will be a relation between each chapter. Now the previous chapter was Anna Raksha Adhyaya, जो 7th अध्याय है. अब है मात्रा शिति अध्याय. अब अन्ना रक्षा अध्याय के बाद ये वाला अध्याय जो है आने का क्या जरूरत है. सो हियर द टीकाकार क्लियरली मेंशंस यतः विषादिभ्यो रक्षितम अन्नपानम. जो विष आदि से रक्षित अन्नपान जो है अभी रक्षा हुआ है ऑलरेडी. यू हैव डन दी मेंटेनेंस ऑफ फूड by keeping all the visha and other impurities away from the food. Now what to do? Now it is your duty to eat. मान लीजिए आपने खाना खाते वक्त यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द क्वांटिटी, मात्रा. फिर क्या होगा? हीन मात्रा और अति मात्रा हो सकता है. एंड इवन इफ यू आर एबल टू मेंटेन दैट फूड बाय कीपिंग अवे फ्रॉम ऑल द इम्प्योरिटीज, आपके मात्रावत आहार नहीं लेने की वजह से इट कैन लीड टू सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस एंड अल्टीमेटली the last stages of the life. It could even lead to the death. Jivita upaghataya sampadhyati. That is why praninam pranaya, for the purpose of maintaining the prana, of whom prana, prani, that is any of the animal, that is living organism, matra abhyavavritam. So the person has to take the proper quantity of food. कहने का मतलब है, if you know the guna dharma of a dravya and if you prevent it from getting contaminated,
उतना काफ़ी नहीं है। आपको जितना टाइम उसको चूज़ करने में और उसको प्रोटेक्ट करने में लगा, उतना ही दिमाग आपका मात्रावत आहार खाने में भी लगना चाहिए, तभी जाके वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं कर सकता है। एंड इवन इन द केस ऑफ आतुरस्य विकार प्रशमनम। So this is the main motto why Matra Shitya Adhyaya is present just after Anna Raksha Adhyaya according to Vagbhata. Now we move ahead to the actual chapter. अथा तो मात्रा शितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति अस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। हर एक स्लाइड में आपको दो दो वर्षन देखने को मिलेगा। वन विल बी दी संधि युक्त, जो भी शास्त्र में देखने को मिलता है वही मिलेगा, एंड इन द लोअर एस्पेक्ट यू विल सी दी वर्शन ऑफ द श्लोक विथ संधि विच्छेद, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर ये मंगलावचरण या एक तरह से इंट्रोडक्शन शुरू होता है। हर एक अध्याय में इंट्रोडक्शन श्लोक है, ये आपको पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अथ, सबसे पहले अथ। अथ टर्मिनोलॉजी इज हैविंग टू मीनिंग्स। वन इज मंगलवाची शब्द। बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ गुड वर्क वी यूज टू, मतलब इंडियन जो फिलोसफी है या इंडियन जो ट्रेडिशन है, हमेशा एक मंगलवाची शब्दों का उच्चारण करते हैं। इट कैन बी अ प्रेयर सॉन्ग, इट कैन बी अ मंत्रोच्चारण, एनीथिंग। So there are few words which are considered as Mangalavachi Shabda according to Indian tradition. One of them is Atha. That is why it is used. Other than that, one more meaning is there, Paschat, बाद में. So Paschat के अर्थ में. So if you take the first meaning Mangalavachi Shabda, okay, because the chapter is starting. If you want to take the second meaning, that is Paschat, then किसके पश्चात क्वेश्चन आएगा? After what? पश्चात means after. After what? मात्रा शीति अध्याय जो है आफ्टर अन्न रक्षा अध्याय आ रहा है. So just before this chapter there was the conclusion of Annaraksha Adhyaya. Now after Annaraksha Adhyaya, next वाला जो अतः शब्द है संप्रति, संप्रति का मतलब है अभी, नाउ। आफ्टर Annaraksha Adhyaya संप्रति अभी, नाउ मात्रा शीतीयम अध्यायम. So he is just telling the name of the chapter. Adhyaya is nothing but the name of the chapter. That is how the content of each sthana is divided into various chapters. So name of the chapter is Matra Shitiyam. So Matra Shitiyam Adhyayam व्याख्यास्यामः, यहाँ पर बहुवचन का रूप है, व्याख्यास्यामः, गच्छामः। सो ये व्याख्या करेंगे इस अर्थ में है। दी डिस्कशन और यू कैन से दी डिस्क्रिप्शन विल बी गिवन बाय अस। सो करेंगे, ये उत्तम पुरुष के शब्द है। उत्तम पुरुष मतलब खुद के लिए कह रहे हैं, खुद के साथ बाकी लोगों को भी जोड़ रहे हैं। व्याख्यास्यामः, सो व्याख्यास्यामः, वी प्लस आ प्लस ख्यास्यामः। वी रेफर्स टू विशेष रूप से, दैट इज स्पेशली। आंग उपसर्ग जो है पर्यंतम, पर्यंतम मतलब सफिशिएंट, जितना चाहिए उतना। और ख्या, ख्या रेफर्स टू कथनी, बोलने के अर्थ में है। ख्या धातु जो है वो बोलने के अर्थ में है, दैट इज टू टेल, प्रकथनी। एंड श्यामः, श्यामः इज बहुवचन रूप इन उत्तम पुरुष कॉन्टेक्स्ट। सो इट मे बी यूज्ड टू गिव रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स, बिकॉज ही हैज लर्नड दिस शास्त्र फ्रॉम हिज सीनियर टीचर्स, आत्रेयादि महर्षि, वो जो सेकंड लाइन में बता रहे, टू गिव रेस्पेक्ट टू देम, बहुवचन का रूप इस्तेमाल हुआ है, व्याख्यास्यामः इति। और व्याख्या करेंगे तो व्याख्या करने के लिए आपको पहले इंफॉर्मेशन आना चाहिए। यू शुड नो इनिशियली अबाउट द टॉपिक, देन ओनली यू कैन गिव द व्याख्या, राइट। नाउ ही इज टेलिंग फ्रॉम whom did he get this knowledge? इति, इति मतलब एज, जैसे ह जो वर्ण है यहाँ पर निश्चय ना, निश्चित रूप से इस अर्थ में है, डेफिनेटली मतलब डेफिनेट नॉलेज की बात कर रहे हैं, मीन्स देयर इज नो कंफ्यूजन। स्म यहाँ पर पास्ट टेंस के अर्थ में है। उसके बाद है आहू, आहू का मतलब है टू टेल, टू टेल बोलना। स्म आहू मतलब ये पास्ट टेंस में बन गया। स्माहू मतलब बोला गया है, जैसे निश्चित रूप से बोला गया है। एज टोल्ड डेफिनेटली बाय हुम? आत्रेयादि महर्षय, दैट इज आत्रेय आदयः महर्षय। So Atreya is one of the name of the principal teacher, Atreya Maharshi. Adaya refers to some other teachers like Atreya. It could be Dhanvantri, it could be any other person. It is not just Atreya. There were so many teachers. But जो फेमस है, जो शास्त्रों में देखने को मिलता है, वो है महर्षि आत्रेय। महर्षि आत्रेय ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बनाया, और स्टूडेंट्स जो है, हर एक स्टूडेंट अपने अपने जो एक पोटेंशियल है उसके साथ आगे बढ़े, वो अपने अपने शिष्यों को और पढ़ाए। अल्टीमेटली जब वाग्भट ने इस शास्त्र सीखा, इट इज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम आत्रेय, राइट, इट इज फ्रॉम समवन एल्स, बिकॉज टाइम पीरियड इज एंटायरली डिफरेंट, बट स्टिल इज गिविंग द
utmost respect to the first teacher, that is Atreya. Adi refers to all those people who came later to him. Atreyadeha Maharshayah. Maharshi is nothing but the Visheshana Shabda here. Maharishi. They are considered as ऋषि because उनका जो एम है, लक्ष्य है, वो लौकिक जीवन नहीं था. वो कहीं ना कहीं अपना जीवन जो है समर्पित किए थे. They had done they had devoted their lives towards others. It could be in terms of medical science or the society, anything like that. So that is why they are all called as Maharishi. And Atreyadaya Maharishi is nothing but the great sages like Atreya. Adi means the like other sages. सो इस तरह से आपको ये जो श्लोक है पूरा समझ में आ गया होगा. सो लेटर और आफ्टर द मंगलवाची शब्द नाउ मात्राशिति अध्याय विल बी डिस्क्राइब्ड by us as told by definitely told by the महर्षि like आत्रेय. ये आपका इंग्लिश वर्जन है. अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो पश्चात के अर्थ में अध्याय से पश्चात, उसके पश्चात, उसके बाद में, या मंगलवाची शब्द के बाद में, संप्रति, अभी. मात्राशितीय अध्याय नाम का जो मात्राशितीय नाम का जो अध्याय है उसका व्याख्या हम करेंगे जैसे निश्चित रूप से कहा गया था महर्षि आत्रेयादि महर्षियों के द्वारा. इस तरह से आपका ये हिंदी ट्रांसलेशन बनेगा. तो ये जो श्लोक है हर एक अध्याय में आएगा तो बार बार रिपीट होगा तो आपको वैसे क्लियर हो जाएगा. सो विल स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक आफ्टर गिविंग द सैल्यूटेशंस टू द टीचर्स. अभी मात्राशीति अध्याय का जो मूल उद्देश्य है उसके लिए आ रहे आचार्य वाग्भटा. मात्राशी सर्वकालम स्यात्, मात्रा ही अग्नेः प्रवर्तिका, मात्रां द्रव्याणि अपेक्षन्ते गुरूणि अपि लघूनि अपि. तो दोनों लाइन को हमने संधि विच्छेद करके पढ़ लिया. सो मात्राशी सर्वकालम स्यात्, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट व्हाट ही वांट्स टू टेल. सर्वकालम स्यात्, सर्वकाल रेफर्स टू सभी कालम. इट कुड बी द स्वस्थावस्था, आतुरावस्था, एनीथिंग लाइक दैट. सर्वकालम, starting from your birth to death, whether you are healthy or unhealthy, it refers to all kala, sarvakalam. Sarvakalam matrashi syat, he is telling at all times we should be matrashi. अब ये जो मात्राशी शब्द है ये व्यक्ति के लिए कहा गया है. मात्राशी इज रेफरिंग टू द पर्सन. अगर आप इसका टीका देखेंगे तो ये काफी अच्छा एक टीका है. मात्राम रेफर्स टू, आई मीन मात्राशी रेफर्स टू मात्राम, मात्रावत अन्नम अशितुम भोक्तुम शीलम यस्य असौ मात्राशी. यहाँ पर आप देख सकते हैं शीलम, शीलन मतलब अभ्यास, भोक्तु मतलब खा चुका है, मतलब खाने के अर्थ में है और वो अभ्यास में. जो मात्रावद अन्न को रेगुलरली खाएगा उनको हम मात्राशी के नाम से बुला सकते हैं. मीन्स वी कैन कॉल देम एज मात्राशी. सो हियर मात्राशी रेफर्स टू यस्य, जो व्यक्ति हमेशा, मतलब शीलन अर्थ में है, अभ्यास के अर्थ में है हमेशा. मात्रावती रेफर्स टू सम्यक मात्रा, जितना चाहिए उतना सम्यक मात्रा में आहार को लेने वाले हैं, वो है मात्राशी. तो मात्रया अशितुम भोक्तुम शीलम यस्य तथा, ये दूसरे अर्थ है. ये भी ऑलमोस्ट हमें वही मीनिंग बता रहे. तो आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ मात्राशी स्यात् रेफर्स टू हमें हमेशा के लिए, मतलब मात्रावत आहार खाने वाले लोगों में ही रहना चाहिए, मतलब उसी ग्रुप में आना चाहिए. आई थिंक नाउ यू गॉट द पॉइंट. मात्राशी स्यात् मीन्स बी अ पर्सन हु ऑलवेज ईट्स और टेक्स द फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी. ये आपका फर्स्ट पाद जो है मात्राशी स्यात् उसका अर्थ है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वही मात्रा ही, ई जो है यस्मात् के अर्थ में है, मीन्स एज, ड्यू टू, मतलब एक रीजन देना होता है, हम उस टाइम ई लेटर का इस्तेमाल करते हैं. रीजन क्या है मात्राशी होने का? मात्रा अग्नेः प्रवर्तिका. सो अग्नि शब्द इकारांत है, तो अग्नेः जो है ये षष्ठी एक वचन का रूप है. इट इज द षष्ठी एक वचन रूप, ये संबंध के अर्थ में है. मात्रा अग्नेः प्रवर्तिका, मात्रा जो है, मात्रा ये रेफर्स टू सम्यक मात्रा, अग्नि को प्रवर्तन करने वाला है. मीन्स आपकी जो जाटरा अग्नि है, इफ इट हैज टू स्टे नॉर्मल एंड इफ इट हैज टू स्टे एट इट्स नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल, ना नीचे ना ऊपर होना, प्रवर्तन करना मतलब अग्नि को एक तरह से मेंटेन करना, यहाँ पर अग्नि को अपने काम करने देना, दैट इज डन बाय मात्रा.
सो मात्रा, सम्यक मात्रा इज वन ऑफ द रीजन टू मेंटेन योर अग्नि, ये यही हिडन पॉइंट है. एंड ये जो मात्रा है, हाउ इट इज डिपेंडेंट, like whom do we refer to tell that this is the matra and this is the matra? Point is clear, we should have the matravatahara, that is clear, because agni is dependent on matra. Now the question is how to decide the matra of any kind of dravya. That is answered in the second line. Matram dravyani apekshanti. अपेक्षा मीन्स या डिपेंडेंसी. मात्रा जो है द्रव्यों के ऊपर निर्भर है. मात्रा जो है द्रव्यों को अपेक्षा करता है, करते हैं, मतलब करता है. कैसे? गुरुणी लघुनी अपि, अपि मतलब ऑल्सो, गुरुणी ऑल्सो, लघुनी ऑल्सो. मतलब द्रव्य जो है गुरु भी हो सकता है, लघु भी हो सकता है. सो जो विंशति गुण है which we usually consider for mentioning the guna of any dravya, we have to consider the guru laghu tattva. Out of all those 20, the important ones while we are deciding the matra is guru laghu. So these are called as dvandva because they are opposite to each other. One of the dvandva vimshati guna, that is guru laghu. So गुरुणी अपि लघुनी अपि, अगर आप गुरु का भी डेफिनेशन देखे हैं तो वहां पर भी ऐसे लिखा है यस्य द्रव्यस्य ब्रह्मणे कर्मणे शक्ति स गुरुः. एंड फॉर लघु इट इज रिटन एज यस्य द्रव्यस्य लंघने कर्मणे शक्ति स लघुः. सो यहां पर भी आपको ऐसे ही अर्थ मिलेगा, बिकॉज गुरु द्रव्य टेक टाइम फॉर द डाइजेशन एंड लघु द्रव्य टेक्स लेस टाइम फॉर द डाइजेशन. तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मात्रा जो है द्रव्य के गुरु या लघु गुण के ऊपर डिपेंडेंट है. सो अपी रेफर्स टू ऑल्सो, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए. सो वन पॉइंट इज क्लियर, डिपेंडिंग ऑन द गुरु और लघु गुण वी कैन डिसाइड द मात्रा. एंड जैसे मात्रा डिवाइड हो जाएगा यू कैन मेंटेन द अग्नि. नाउ द क्वेश्चन इज वंस द मात्रा इज डिसाइडेड, तो एक बार टीका देखिए यहाँ पर. सो सर्वकालम रेफर्स टू स्वस्थावस्था आतुरावस्था, जो मैंने आपको पहले ही कहा वही है. सो वाई रीजन एवरीथिंग इज द सेम. एंड वाई टू मेंटेन द अग्नि, अगर आपके मन में क्वेश्चन आया वाई टू डू द अग्नि प्रवृत्ति, बिकॉज अग्नि प्रवृत्ति इज द रिस्पॉन्सिबल कॉज फॉर देह स्थिति. योर बॉडी इज इन इट्स स्टेट बिकॉज योर अग्नि इज नॉर्मल. अगर आपको बॉडी को नॉर्मल स्थिति में रखना है तो आपको अग्नि नॉर्मल रखना है. अग्नि को नॉर्मल रखना है तो मात्रावत आहार लेना है. एंड इफ यू वांट टू टेक मात्रावत आहार यू हैव टू रेफर टू गुरु लघु सिद्धांत. सो दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट. इसलिए मात्रा या प्राधान्य. And he has given the example, the Tikakar has given the example which are Guru Dravya, which are Laghu Dravya. This I need not explain because 5th and 6th chapter of Ashtanga Hridayam in detail you have studied regarding which are the Guru. For example, the milk products are coming under Guru and certain Dravya, I mean Dhanya like Masha, Bengal gram. Similarly, the Laghu Dravya, the rice variants which are harvested in 60 days, Chashtika Shali, Mudgadi. So these are coming under Laghu. So this need not be studied. Next, we'll move ahead for the next part, that is in relation to how to take the food when the dravya is guru and how to decide the matra when the dravya is laghu. Gurunam ardha sauhityam. Gurunam ardha sauhityam. So gurunam ye shashti bahuvachan roop hai. So gurunam here refers to gurunam dravyanam, because guru dravya, guru गुण को हम खा नहीं सकते ना. All guna are dependent on dravya. All guna are present in a dravya. So here Gurunam refers to Gurunam Dravyanam. The dravya which are guru in nature, they should be taken up to Ardha Sauhityam. Sauhitya refers to Tripti. जितना आपको सेटिस्फेक्शन लगता है उस वहां तक लेने के लिए हम सौवित्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं. सो सौवित्य मीन्स द अप टू द quantity up to which you feel the maximum satisfaction, that is called savitya. So satisfaction in the sense mental satisfaction, ये यूजुअली थोड़ा ज़्यादा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यू लाइक सर्टेन स्वीट और यू लाइक सर्टेन अम्ल रस द्रव्य. जैसे आपके सामने मिल गया यू स्टार्ट ईटिंग दैट एंड यू डोंट वरी अबाउट द मात्रा, बिकॉज मेंटली आपको जो साइक है या मनस है एक्सपेक्ट्स मोर, बिकॉज सेटिस्फैक्शन लेवल इज वेरी हाई एंड the quantity up to which the satisfaction maximum level reaches is not good for the body. आपके मनस के लिए ठीक है, but is it good for the body? No. Usually the extreme level of savitya should not be taken. So here he says guru dravya जो है अर्ध, only half of your
मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन शुड बी टेकन। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 4 समोसा खाने का मन है या 4 स्वीट्स मिठाई खाने का मन है, दैट इज योर मनस इज टेलिंग यू शुड टेक ओनली हाफ ऑफ दैट। You like some certain food, maybe you like more of chapati. You say 8 chapati are kept in front of you. After 3 or 4 chapati, अगर आपको लग रहा है if it is half of your complete satiety, then you can leave. Because जो चपाती है वो भी गेहूं से बनता है या कोई भी द्रव्य से बनता है, सो गुरु होता है। So, गुरु नाम अर्ध सौवित्यम, you should not take more than that. Whereas लघु द्रव्य, can you take it up to the complete satisfaction? No. वहां पर भी उन्होंने एक एक बाउंड्री लगा दिया, न अति तृप्तता। इट शुड नॉट बी सच दैट अति तृप्ति शुड नॉट फील द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मीन्स लघु होने के बावजूद भी आपको मन मर्जी से नहीं खाना है द क्वांटिटी। देयर ऑल्सो यू शुड रिस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी ऑफ लघु द्रव्य, दैट टू हाउ मच, न अति तृप्तता। यू शुड नॉट फील एक्सट्रीम सैटिस्फैक्शन। ओके, अर्ध सवित्य तो पास होना ही होना है, बिकॉज द लघु द्रव्य इज गोइंग टू गेट डाइजेस्टेड वेरी फास्ट compared to the Guru Dravya. But maybe some more of Ardha Savitya, but not up to complete satiety. That is called as Na Atitraptata. And what is the basis of this Ardha Savitya and Na Atitraptata? The basis is Sukam Yavat Vijiryati. Yavat Sukam Vijiryati. Jab tak, till Sukam Vijiryati. Till that time, till that quantity or till that time, the food can be easily digested. Sukam Vijiryati. That is the basis for this. Matra Pramanam Nirdishtam. On the basis of that, this Nirdesha or this kind of description is given. Nirdishtam means here the description. Nirdishta. Description दिया गया है, and एक तरह से निर्देश दिया गया है, means some kind of rules are given in a descriptive way. That is by considering the time for digestion in a easy manner. Sukam yavat vijiryati. So if you take Guru Ahara more than Ardha Savitya or Laghu Ahara up to Atitraptata, then Sukam Vijiryati concept will be wrong, like it will be opposite. There your body will require certain extra effort to make that food to get digested. Now the interesting point is, there is a word called as Matra Pramanam. So मात्रा और प्रमाण दोनों जो है लगभग सेम अर्थ में है। So उसके लिए टीकाकार ने कहा मात्रा refers to, it could be रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा, बृहत मात्रा। ये जनरल टर्म है मात्रा। So रस्व मात्रा जैसे लेस, मीडियम एंड हाई, ये जो हम क्वालिटेटिवली कहते हैं, ये मात्रा शब्द से हमें लेना है। और जो प्रमाण है, सो प्रमाण, व्हाट इज प्रमाण? देयर द नंबर कम्स। सो रस्व मात्रा मतलब कितना है, कितना प्रमाण है। सो मात्रा एंड प्रमाण हियर आर हैविंग टू डिफरेंट एंटिटीज, मीनिंग द फर्स्ट मात्रा इज रेफरिंग टू द क्वालिटेटिव वे, लाइक रस्व, मध्यम एंड बृहत मात्रा और महामात्रा। प्रमाण जो शब्द है वो एक नंबर, क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से टीकाकारों ने इसको क्लैरिफाई कर दिया। I think that point is clear. Otherwise, Matra and Pramana look similar for you also. So this is the clarification. One is the qualitative, other one is quantitative. Next, imagine you take less of the food. गुरु जो आहार है उसको भी हरद सवित नहीं ले रहे, कम ले रहे, and even the लघु आहार you are not taking even up to नाति तृप्तता, you are taking less amount of food. What happens then? हीन मात्रम भोजनम, भोजनम हीन मात्रम तु न बल उपचय ओजसे. So हीन मात्रम भोजनम, तू refers to निश्चित रूप से, हीना refers to कम. So whenever you take the food भोजनम, that too in less quantity, हीन मात्रा हमने डिस्कस कर दिया कैसे हमें डिसाइड करना है. न बल उपचय ओजसे. So न refers to negation, तू निश्चित रूप से डेफिनेटली के अर्थ में है. बल उपचय ओजसे, ये जो शब्द है 3, दिस इज एंडिंग विथ ओजसे. ओजस शब्द जो है ये सकारांत शब्द है. द सकारांत शब्द दी चतुर्थी विभक्ति रूप ओजसे है. सो बल उपचय ओजसे इज रिटन इन द चतुर्थी विभक्ति रूप, और यहाँ पर समास किया गया है, दैट इज वाई एक वचन रूप इज यूज्ड. सो अदरवाइज द बहुवचन रूप शुड हैव बीन यूज्ड. बल उपचय ओजसे. सो बल के लिए, उपचय के लिए, ओजस के लिए. So हीन मात्रा आहार is not able to get complete amount of bala, complete amount of bala upachaya, complete amount of ojasa.
Not only that, sarvesham vataroganam etutam cha prapadyati. So not only that, ये तो ठीक है, कुछ चीजें नहीं मिल रहा है. What are those? Bala, upachaya, ojas. We'll see one stika and then we'll come back. What is the meaning of bala? Bala means shakti, sharirik shakti hai, means the strength you can say. Upachaya, pushti. You require the regular nourishment of the dhatu because each day your dhatu is decreasing. Shiryateti shariram. You want that lost dhatu to be again regularly replenished. Otherwise, अर्ली एजिंग होगा, अर्ली आपको थकान होगा, इस तरह का सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा. ओज रेफर्स टू कांति. कांति मीन्स सम काइंड ऑफ लस्टर. जैसे आपको कोई देखेगा, दे विल फील एनर्जेटिक बिकॉज यू आर ऑल्सो एनर्जेटिक. दैट you can say the nature of a person looking very energetic to do any kind of work, the energy level, the activeness level, the enthusiasm to do any kind of work, all these depict the concept of ojas. Ojas ka conceptual part alag hai. Now I am talking about the application part. How to tell that ojas of a person is intact? By looking at his activities, by looking at his face, by looking in his eyes or her eyes, depending on the person. So bala upachaya ojas है, ये तो क्षय होगा, मतलब ठीक से काम नहीं होगा. दूसरी चीज जो है, कम बैक, दैट इज सर्वेशम वातरोगाणाम. देर आर वेरियस वातरोगा. वातरोगा मीन्स दोज विकार which are caused due to dominant vata dosha. So vata dosha usually happens due to mainly two reasons. One is धातु क्षय, दूसरा जो कारण है वो है आवरण. So धातु क्षय is one of the कारण. अगर आपका आहार हीन मात्रा वाला है, so you will lose the धातु. So dhatu kshay is one of the cause for the vata vyadhi. So now vata vyadhi, which vata vyadhi can occur? Multiple. It can be simple joint pain. It can be a severe loss of weight. It can be any kind of vata vyadhi. You are going to study about vata vyadhi in second professional BMS in various subjects and even final year, final professional BMS. So sarvesham vata roganam, all kinds of vata vyadhi, that is vata jaroga, hetutam. So this will be the hetu. Which will be the hetu? हीन मात्र भोजन प्रपद्यते. प्रपद्यते मतलब उस डायरेक्शन में ले जाएगा. सो इट विल टेक यू टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. च रेफर्स टू समुच्चय बिकॉज दो इम्पैक्ट उन्होंने बताया. व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? टू रेफर्स टू निश्चयन, निश्चित रूप से. कॉन्टेक्स्ट क्या है? भोजनम हीन मात्रम. सो हीन मात्र भोजन इज द कॉन्टेक्स्ट. टू निश्चित रूप से, जो भी कहा गया वो डेफिनेट है. दो आउटकम है. वन इज नॉन fulfillment of proper bala upachaya ojasa, and cha jo hai, and it will also take you towards, and it will also become the hetu or the karana towards getting vata vyadhi. All kinds of vata vyadhi. ये आपका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है. हीन मात्रा भोजन लेने से या अभ्यास करने से निश्चित रूप से बला उपचय और ओजस का क्षय होगा, और ये भोजन हीन मात्रा है या हीन मात्रा भोजना जो है ये हेतु बन जाएगा और हमारे शरीर को सर्व वातव्याधि के ओर ले जाएगा. इस तरह के अर्थ में आपको ये हिंदी ट्रांसलेशन करना है. सो दिस इज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इन बोथ लैंग्वेजेस. जस्ट सी द टीका, इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ अशन अदर देन सम्यक अशन. सम्यक आहार लेना एक चीज है, इसके अलावा दो और अल्टरनेटिव हो सकते हैं. वन इज हीन मात्र भोजन, वन इज अतिमात्र भोजन. सो इनिशियली इज एक्सप्लेनिंग हीन मात्र भोजन एंड आफ्टर दिस एक्सप्लेन्स अतिमात्र भोजन. सो दिस इज बाय प्रसंग तंत्र युक्ति. चैप्टर का नाम है मात्रा शितिया. वाई टू एक्सप्लेन ऑल दिस नेगेटिव पॉइंट्स? वी हैव टू एक्सप्लेन ओनली दी गुड वंस. सम्यक आहार मात्रा इज सफिशिएंट, आपके मन में ये आया होगा. लेकिन एक प्रसंग तंत्र युक्ति है. व्हाट इज दैट? whenever you start explaining something, describing something, जो भी related matter है, अगर आपको लगेगा कि this is important, you will analyze the related point then and there itself. So यहाँ पर प्रसंग तंत्र युक्ति से अतिमात्रा भोजना और हीन मात्रा भोजना का टॉपिक आया, और इसलिए पहले हीन मात्रा को खत्म कर दिया क्योंकि उसमें बोलना कम था. अब अतिमात्रा भोजन के बारे में बोलेंगे. सो अतिमात्रम तो अशनम त्रीन अपि दोषान प्रकोपयेत. अतिमात्रम तो अशनम त्रीन अपि दोषान प्रकोपयेत. सो हीन मात्रा तो हो गया, लेकिन अतिमात्रा आहार लेने से अशनम रेफर्स टू बोक्तुम, टेकिंग फूड इनसाइड. त्रीन अपि, त्रीन अपि क्यों? बिकॉज वात पित्त कफ आर द थ्री शारीरिक दोषा. अपि ऑल्सो दोषान, त्रीन दोषान अपि प्रकोपयेत. All the three dosha will undergo prakopa. So this is a major impact in relation to dosha. In relation to amatra bhojana or inamatra bhojana, majorly vata dosha is getting affected. Vata dosha prakopa occurs. Of course, the others may be involved, but the dominant one is vata dosha initially.
But in case of Atimatra Bhojana, all three dosha can get affected. They can undergo Prakopa. तो ये आपको इस पॉइंट से क्लियर हो गया होगा. सो अभी एक संप्राप्ति इन्होंने बताया. यू नो व्हाट इज संप्राप्ति? संप्राप्ति मीन्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ निदान हाउ द पैथोलॉजी entered or underwent inside the body. That is mentioned here. So the context what is going on is Atimatra Bhojana. Atimatra Bhojana ले चुके हैं. So now what happens? पीड्यमाना ही वाताद्य युगपत तेन कोपिताः आमेन अन्नेन दुष्टेन तदेव आविश्य कुर्वति. थोड़ा श्लोक मुश्किल लग रहा है. You have to listen to this very carefully. So this is written in a jumbled way. क्योंकि संस्कृत ग्रामर है तो आप शब्दों को इधर उधर एक्सचेंज करो, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा. दैट्स व्हाई वी हैव टू डू द अन्वय. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस पॉइंट इन संस्कृत पेपर 2. So if you try to do the anvaya here, you have to start with the second line. Amena annena. So atimatra bhojana is done, right? The person has taken atimatra bhojana. Atimatra का अर्थ क्या है? अर्ध सवित्य से भी ज्यादा लिया और रेगुलरली ले रहे हैं. So this is called as atimatra bhojana. If it is लघु आहार, नाति तृप्तता को भी पार करके अति तृप्तता and excessively is taking. So this is atimatra bhojana. Now because of this what happens, your agni will try to digest the indigested food, but when it is ati in nature, somewhere or the other agni will hamper. जैसे for example मान लीजिए you are given a particular homework, maybe you are asked to learn 2 shloka today. At the same time the other teachers also gave you 2 shloka each, so you are capable of learning 2 shloka a day, but on that day you have 10 shloka to learn. वैसे ही आपके शरीर में आप जितना आहार देना चाहते हैं टू योर बॉडी, एक्सेसिवली आपने दे दिया. नाउ कैन यू लर्न ऑल द 10 श्लोका? नो, इवन दोस 2 विल बिकम डिफिकल्ट. वो 2 भी जो आप सीखने वाले हैं वो भी गड़बड़ हो जाएगा. सिमिलरली द अग्नि विल बी हैम्पर्ड. नाउ अग्नि विल ट्राई टू डाइजेस्ट, बट समहाउ इट विल एंड अप नॉट डाइजेस्टिंग द मेजॉरिटी ऑफ द फूड, और खुद भी एक तरह से नुकसान में पहुंच जाएगा, क्षय हो जाएगा. अग्नि मांद्य अवस्था विल गो ऑन. सो at that time what happens, the food is the ingested food is not in pakvaवस्था, वो आमावस्था में है. इसलिए सेकंड लाइन में लिखा है आमेन अन्नेन. ये जो अपक्व आहार अभी आपके आमाशय में है, सो उसके द्वारा आमेन अन्नेन. एंड व्हेन इट स्टेज देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, व्हेन इट स्टेज देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, आमाशय में अगर अजीर्ण आहार है, इफ इट इज स्टेइंग फॉर लॉन्गर टाइम, देन व्हाट हैपेंस? पीड्यमाना वाताद्या पीड्यमाना. सो व्हाट इट डज, इट विल ब्लॉक द स्रोतस. जो अजीर्ण आहार है, जो आहार विच इज नॉट डाइजेस्टेड, it will block the srotas, because you have samana vata there, you have kledaka kapha, also you have pachaka pitta. All the 3 vata pitta kapha dosha are present there in one or the other form. तो जब इतना ज्यादा मात्रा में आपने खिलाया अपने बॉडी को, तो now there is no place for this vata pitta kapha to act. And what they will try to do, they will try to move, but pidyamana, they will not be able to move, because pidyamana means ruddhamana. Here pidana means some kind of pressure. Pressure is due to the non availability of space. जैसे एक कमरे में अगर 10 लोग रुक सकते हैं, imagine in the same room you fill 50 more people. Now what happens? Now the pidyamana, those 10 people cannot easily move. जो main 10 बंदे हैं वो काम नहीं कर पाएंगे. Now they are stuck in that traffic. So similarly this vata pitta kapha stuck in the traffic. Vatadya pidyamana. So here vatadya refers to vata pitta kapha, Pidyamana refers to Ruddhamana. Now they are in the state of jam, block. E refers to Yasmat. कारण बता रहे. So because of this, युगपत, युगपत मतलब एक साथ, टुगेदर. तेना, तेना एक तृतीय एक वचन रूप है. तेना मतलब कारण है, जिसके द्वारा, इसके द्वारा. अब इसके द्वारा किसके द्वारा? आमेन अन्नेन. Due to this apakvahara being there, आमेन अन्नेन तेना. So because of this, कोपिताः. अब तीनों दोष जो हैं प्रकोप अवस्था में पहुंच जाएंगे. So I think the point is clear. So that room you can imagine where I mentioned 10 people are there, you add 40 more people. So जो 10 लोग पहले जो बैठे थे, अब वो उग्र हो जाएंगे. They will be in a distressful state. They will not be able to they will not be able to function normally. तो यही चीज शरीर के अंदर हो रहा है. तो आमाशय is now filled with these kind of excessive ahara, that is apakva ahara, vata pitta kapha. Together they become kupita,
एंड उसके बाद क्या होगा, दुष्टेन, देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड एज दुष्टेन इन द सेकंड लाइन. So Dushtena, this Apakvahara now gradually undergoes Dushta because this will undergo changes. आमाशय में एज इट इज नहीं रहेगा ना, वो अपने आप चेंज होता रहेगा बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस देयर. द फूड व्हाट यू टेकन विल अंडरगो चेंज. धीरे धीरे जो है आपको अजीर्ण का लक्षण देखने को मिल जाएगा. सो दुष्टेन हियर रेफर्स टू इट बिकम्स अफेक्टेड. नाउ वात पित्त कफ आर आल्सो इन्वॉल्वड बिकॉज वो अभी दुष्ट हो चुके हैं. व्हेन द दोष आर दुष्टा इन नेचर, it will again act on this remaining apakvahara. It will cause further more problem there. So dushtena refers to getting affected. They are also affected now, this food. Tat eva avishya kurvate. Tat here refers to annam, this apakvahara, that is amahara. Tat eva, in this only avishya, avishya means pravishya, वहां पहुंचकर प्रवेश करके. आमाहार में ही क्यों जाएगा वात पित्त कफ? Because there is no place to go out. There is no place to go out because this rotas is closed now. पीड्यमान. दैट इज वाई तदेव आविश्य, दैट आमाहार के अंदर ही आमाशय में जाएगा ये वात पित्त कफ एंड कुर्वते. दे विल कॉज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. दे विल डू सर्टेन एक्शंस, दे विल कॉज सर्टेन एक्शंस. व्हाट आर दोस? वो थर्ड और फोर्थ लाइन में लिखा है. आई थिंक 2 लाइन क्लियर हो गया होगा. आमेन अन्नेन वाताद्या ही पीड्यम ई, आमेन अन्नेन ही वाताद्य पीड्यमान तेन युगपत् कोपिताः दुष्टेन ततेव आविश्य कुर्वते. इस तरह से इसका अन्वय कर सकते हैं. यू कैन डू इट इन मल्टीपल टाइम्स. व्हाट आर द थिंग्स इट विल डू? लाइक दिस कंडीशन विल कॉज कुर्वते. अभी क्या करेगा? ये कुर्वते शब्द का अर्थ क्या है आगे लिखा है. विष्टम्बयन्तः अलसकम, चावयन्तः विसूचिकाम. 2 पॉसिबिलिटी है. विस्तंभ विशेष रूप से स्तंभ, और छावयन्तः दैट इज च्युतार्थ में है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट के अर्थ में. द आमाहार अपक्वाहार कैन रिमेन इन द आमाशय. स्तंभ हो सकता है, मतलब मूवमेंट नहीं हो सकता है, तो उधर ही रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज अलसका. और एल्स वो डिस्प्लेस होगा. कहाँ जाएगा? या तो ऊपर रूट से जाएगा या लोअर रूट से जाएगा. अपर रूट और लोअर रूट. सो चावयंतः मीन्स मूवमेंट, इट कैन अंडरगो मूवमेंट. सो अधः उत्तर मार्गाभ्याम, अधः मार्ग रेफर्स टू गुदा मार्ग, उत्तर मार्ग रेफर्स टू ओरल रूट. दैट इज थ्रू अतिसारा एंड छर्दी. सहसा, सहसा मीन्स अचानक से, मीन्स इंस्टेंटली. इट विल नॉट टेक लॉन्ग टाइम. कुछ ही समय में ये सारी संप्राप्ति खत्म हो जाएगा, मीन्स आगे बढ़ेगा. ये मीन्स डेफिनेटली ये होना ही है. किसको होगा? ये एक शब्द लिखा है अजितात्मनः. जितात्मा आर द पीपल हु हैव कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस. सो जैसे बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं हम उनको कहते हैं जितात्मा, मीन्स दे हैव द कंट्रोल ओवर द सेंसेस. हालांकि आजकल ये सिर्फ बिजनेस के रूप में देखा जाता है, हालांकि ऑल ऑफ देम आर नॉट जितात्मा. बट जितात्मा का अर्थ ये है, द वन हु हैज कंट्रोल ओवर हिज आत्मा, मीन्स सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर किस अर्थ में आया? आहार के अर्थ में आया, मात्रावत आहार के अर्थ में. इफ यू आर एबल टू टेक द फूड व्हाट इज प्रिस्क्राइब टू यू, देन यू आर जितात्मा इन रिलेशन टू मात्रावत आहार. अदरवाइज यू आर कॉल्ड एज अजितात्मा. सो ज्यादातर इस तरह की जो संप्राप्ति है अजितात्म लोगों को होता है. इस तरह से एक ससेप्टेबल पीपल का भी उन्होंने उल्लेख कर दिया. दिस काइंड ऑफ संप्राप्ति कैन अकर देयर. So the third and fourth line, just to repeat, there could be 2 possibilities. One is either remain there, स्तंभ होगा विशेष रूप से, उसको विष्टम्भ लिखा है अलसकम. और विष्टम्भयन्तः, यन्तः यहाँ रेफर्स टू दी कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब अगर ये यही रह जाएगा देन इट इज कॉल्ड एज अलसका. अगर वो डिस्प्लेसमेंट होगा देन इट इज कॉल्ड एज विसूचिका. डिस्प्लेसमेंट होने के लिए 2 मार्ग हैं. ये इधर इट कैन गो इन द अपर एंड लोअर. बोथ द रूट्स आर पॉसिबल. सो बोथ द सिम्टम्स पॉसिबल. दैट टू वेरी क्विक मैनर, सहसा. एंड दैट टू किस में होगा? ज्यादातर अजितात्मा लोगों में होगा. सो वट एवर आई टोल्ड इट इज देयर इन दी टीका. जस्ट सी देयर दी थर्ड लाइन. सो पीड्यमान रेफर्स टू स्रोतोरोधात. एक दूसरे से फ्रिक्शन होते हुए परस्पर संगठनिना, तीनों दोष जो है वहां पर युगपत कोप अवस्था में चला जाएगा. सो द प्रीवियस द लास्ट लाइन यू सी, दुष्टेन रेफर्स टू विकृतेन. सो तदेव रेफर्स टू यार तथाविधम अन्नम. वो जो अजीर्ण आहार है, अपक्वाहार है, उसी में प्रवेश होकर ये दोबारा दुष्ट करेगा, इस अर्थ में है. सो अजितात्मा ये लास्ट लाइन में लिखा है. अन्न लोलुप, दोज हु आर क्रेविंग फॉर फूड ऑल द टाइम्स, दे आर कॉल्ड एज अजितात्मनः. सो इन दैट वे वी हैव कंप्लीटेड another important shloka. Now we'll move ahead for the 2 important concepts. One is alasaka, another one is visuchika. जो अभी श्लोक में आया था वही 2 चीजें हैं आगे एक्सप्लेनेशन के लिए. प्रयाति नोर्ध्वम,
उसको स्प्लिट करेंगे संधि विच्छेद, प्रयाति न ऊर्ध्वम, न अधहस्तात्, न अधस्तात्, आहारः न च पच्यते, आमाशयी अलसीभूतः तेन सह अलसकः स्मृतः, सो अलसकः स्मृतः, सह अलसकः स्मृतः. Now what is the adhikarana in this shloka? सह अलसकः स्मृतः, मतलब उस तरह के कंडीशन को अलसक के नाम से याद करते हैं. सो दैट इज द लास्ट पार्ट. दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज रिमेंबर्ड एज अलसका. सो द एंटायर डेफिनेशन इज अबाउट अलसका. ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. सो व्हाट हैपेंस इन दिस? द फर्स्ट पॉइंट इज न ऊर्ध्वम प्रयाति. प्रयाति, याति, यादम इज टू मूवमेंट, टू हैव मूवमेंट, प्रकर्षण मूवमेंट. न ऊर्ध्वम याति. दिस अनडाइजेस्टेड फूड, वट एवर इज देयर इनडाइजेस्टेड फूड, आम अवस्था में वो ना ऊर्ध्व डायरेक्शन में आएगा, ना अधस्तात्. अधस्तात् रेफरिंग टू फ्रॉम द लोअर डायरेक्शन, दैट इज लोअर ओरिफिस इन रिलेशन टू द रेक्टम एंड एनल कैनाल. एनल रूट से नहीं जाएगा. न ऊर्ध्वम प्रयाति, न अधस्तात् प्रयाति. कौन? आहारः. एंड वेदर इट इज गेटिंग डाइजेस्टेड देयर? नो. न पच्यते. छ जो है समुच्चयार्थ में, एंड के अर्थ में. neither it goes upwards, neither it goes downwards, and neither it undergoes digestion. तीनों पॉइंट यहाँ पर लिखा है. ना ऊर्ध्व डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ना अधो डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ना उसका पाचन होगा. कितना मुश्किल सिचुएशन है. एंड इट रिमेन्स इन द आमाशय जस्ट लाइक ए आलसा, आलसी. आलस्यता के एक कंपैरिजन किया गया. द वन हु इज आलसी यूजुअली मींस द पर्सन डजंट हैव क्वाइट मूवमेंट्स. एक ही जगह बैठा रहेगा, उसको हम कहते हैं आलसी. So यहाँ पर food is now आलसी because neither moving upwards, downwards nor getting digested. कहाँ पर? आमाशय में. आमाशये, आमाशय में it is in सप्तमी. अलसी भूतः, the one which remains there. Bhuta refers to here the staying, or you can say acts like a alasi. Tena, because of this reason, a reason for naming it as alasaka they are telling. Due to this reason, that person or that condition is said to be having the name of alasaka. अलसा इज द पेशेंट हु इज हैविंग अलसका. अलसका इज द कंडीशन. अभी आपको ये श्लोक समझ में आ गया. प्रयाति नोर्ध्वम नादस्तात् आहारो न च पच्यते आमाशये अलसीभूतः सो अलसका स्मृतः. सो नाउ व्हाट इज आमाशय? आई थिंक यू माइट हैव स्टडीड इन शरीर रचना. नाभि और दोनों स्तन के बीच के जो जगह है, दैट इज सेड एज आमाशय. सो नाभि स्तनांतरम जंतु आमाशयति स्मृतः. दिस इज अवेलेबल इन द विमान स्थान ऑफ चरक संहिता, 3rd chapter. You can see there. Second chapter, but it is already dealt in Rachana. If not dealt, kindly watch the shloka from that chapter. Charaka Vimana 2, very important, you require that. So with that we complete Alasaka. Now moving ahead with what is Visuchika then. Vividaihi Vedana Udbedaihi Vaivadi Brishakopatah Suchibhihi Iva Gatrani Vidyati iti Visuchika. अब विसूचिका एक्सप्लेनेशन आ रहा है. विविधैहि refers to various, through various. ये तृतीया का बहुवचन रूप है. विविध refers to different or various, through different. vedana, vedana refers to some kind of discomfort. Different kinds of vedana, discomfort can occur to that person. For example, udbedaihi. So udbeda refers to here the different kinds of pain, like bedana, like shula, different types of pain. Or it could be daha, or it could be some other kaphaja lakshana. Any kind of lakshana can occur. That is why it is written as vividaihi vedana udbedaihi. Beda. Beda here refers to different kinds of vedana. Again, different kinds of vedana. And who is causing them? Vayuvadi. Vayu and Adi. Vayu Adi refers to Vayu Pitta Kapha. So Vayuvadi Brisha Kopataha, which have already undergone Kopavastha. यहाँ पर क्त प्रत्यय है. कोपतः रेफरिंग टू कुप धातु, क्त प्रत्यय कोपतः. सो जो तीनों दोष है अभी कुपितावस्था में है, प्रकुपितावस्था. अभी अभी हमने पढ़े थे 3 दोषान. सो तीनों युगपत्तेन कोपिताः. नाउ ऑल द 3 आर इन युगपत कोपावस्था. नाउ ब्रुष रेफर्स टू अत्यर्थम, एक्सेसिवली और इंटेंसिटी वाइज ज्यादा दिखाने के लिए ब्रुष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. सो दीज 3 दोष will cause different, through different kinds of vedana in the body, and the patient will feel like suchibhihi iva gatrani vidyati. Gatrani refers to sharirani. So sharirani
referring to in the body. Suchibhi iva vidyati. Suchi refers to pin, sharp instrument like pin. Suchibhi iva gatrani vidyati. So Suchibhi referring to the pin-like structure, the sharp instrument. Suchibhi, सूचियों के द्वारा, through suchi, like sharp instrument. Gatrani vidyati. The body is having, vidyati means having pricked-like sensation. So vidyati means the sensation, the knowledge. The vid dhatu hai yahan par. The sensation, the person feels like his body is pricked by different kinds of needles, needle-like structures. Iti. This kind of a situation is termed as visuchika. So in case of alasaka, it was amashe alasibhutah. Here it is visuchika, suchivat vedana, visuchika. And which kind of pain? Vivida. Different kinds of pain, different kinds of vedana, different kinds of burning sensation. Vedana can be anything. If it is vata dominant, it usually will have more of pain related symptom. If it is pitta dominant, more of the pittaja lakshana. Kapha dominant, kapha lakshana. इसलिए विविध. So such kind of a situation is called as visuchika. श्लोक आपको समझ में आ गया होगा. विविधैर्वेदनोद्भेदैः वायुवादिभृशकोपतः सूचीभिरिव गात्राणि विद्यति इति विसूचिका. So moving ahead. So नाना प्रकार वेदनोद्भेदैः पीडोत्पादैः. So that is the explanation here. Now this kind of a situation like the वायु आदि, उसके लिए अगर आप एग्जाम्पल चाहते हैं कि how वातज लक्षण will be looking like, will feel like in the patient, how पित्तज लक्षण will feel like, the acharya gives example. Tatra, tatra means teshu madhye, among them, among those patients of visuchika, if the patient is more of vata related dominant symptoms, if he is showing vata dominant symptom, फिर लक्षण क्या होगा? तत्र शूल, various kinds of pain, भ्रम, चक्कर आना, आनाह, some kind of heaviness, or you can say the abdomen not having the laguta, abdomen is having some kind of you can say heaviness along with not passing the stools, such kind of symptoms. Kampa, kampa means here the different kinds of the involuntary movements, थोड़ा बहुत tremor like symptom can occur, patient को involuntary movements हो सकता है. स्तंभ, स्तंभ refers to the joint movements are not easy, उनका जो joint movements है इतना easy नहीं हो रहे. आदयो, आदयो refers to नॉट ओनली दिस सिम्टम, अदर्स भी हो सकता है. आदय रेफर्स टू बाकी जो वातज लक्षण है जो आपने 11th 12th चैप्टर में पढ़े हैं. यू माइट हैव स्टडीड सर्टेन थिंग्स इन 11th and 12th चैप्टर. इफ नॉट, वी आर गोइंग टू स्टडी देयर आर सो मेनी वातज लक्षण, दीज आर ओनली फ्यू. So adaya refers to they also can occur, the different ones. These are just for example. Similarly, if it is pitta dominant, pittat, pitta se, then the symptoms will look like jvara, atisara, antardaha. So ज्वारा आपको पता है, अतिसार भी आपको पता है. अंतर्दाह, some kind of burning sensation internally in the body. It could be in the आमाशय, पक्वाशय region, anywhere. Then trit, excessive तृष्णा, थोड़ा बहुत पानी पीने से भी प्यास नहीं मिट रहा है. So the person is asking again and again the water. Pralaya, pralaya, here the commentator says it is the murcha. The patient may go into some kind of altered consciousness. प्रलय, प्रलय शब्द जो है यूजुअली विनाश के अर्थ में यूज करते हैं हम, आपको पता है, सृष्टि उत्पत्ति प्रलय. So here the मूर्छा अवस्था, person losing the consciousness, person fall down हो सकता है, he can just fall down losing the consciousness. आप पानी डाल दो शायद उठ जाएगा. So that is called as pralaya, that is indicating excessive पित्त दुष्टि. आदयः again not only the symptoms, उसके अलावा आपको और भी symptoms देखने को मिल सकते हैं जो पित्त दोष कर सकता है. And similarly, if it is due to kapha dosha, kaphat chardhi, so the person will have excessive vomiting because the kapha is dominantly having snigdha guna and others. The bulk of the dushta dosha is more, so chardhi zyada aayega, and kapha is having the uras as in pradhana sthana, whereas pitta is having more of the adho amashya, the adho amashya, so वहाँ पर अतिसार ज़्यादा होगा. In case of kapha, it is chardhi which is more. दोनों हो सकता है, but frequency wise if you see, pittaja visuchika patient will have more of atisara than chardi. Kaphaja visuchika patient will have more of chardi than atisara. वातज में भी दोनों होगा, वातज में भी चर्दी और अतिसार होगा, but probably the quantity is less, frequency may be more. So that is the वातज लक्षण. That is the classical symptom of identifying which is the involved dosha. Associated symptoms से भी आपको पता चल जाएगा. अंग गुरुता, the patient of kapha dominant visuchika will have some kind of heaviness all over the body because kapha is involved. Vak sanga,
पेशेंट जब बोलने जाता है, when he tries to speak, he is not able to speak very clearly, fluently. Sanga, there will be some kind of the avarodha. Here it is written as vachaha skalanam. So there will be some kind of the you can say stammering. Skalana here refers to teda meda hona. So skalanam, there could be some alteredness. You may be seeing a person speaking normally, but after some time, his speech is getting altered. You are not able to understand him easily. तो ये इजीली पता चल जाता है जब भी किसी का स्पीच में बदलाव आता है. दैट इज अ easiest one to understand for a listener that his speech is getting affected. वो एक्सपीरियंस से आ जाते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है. सो दैट इज इन रिलेशन टू द वाक संगा. स्टीवना बार बार थूकना, दैट इज ड्यू टू अगेन कफ दोष एक्सेसिवली हैविंग द दुष्टावस्था. सो सर्दी भी हो रहा है, स्टीवन भी हो रहा है, एंड रिलेटेड सिम्टम्स आदय अगेन some other symptoms of kapha dosha can also be seen. So in this way, the patient of both the conditions, it could be both specifically the alasaka because the विसूचिका because चर्दी अतिसार का लक्षण वहाँ पर दिया हुआ है. तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, डिपेंडिंग ऑन द विच दोषा इन्वॉल्वमेंट इज मोर, वहाँ पर हमारा चिकित्सा जो है थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है. अदरवाइज देर इज नो चेंज इन दी चिकित्सा, देर विल बी सम मॉडिफिकेशन इन द चिकित्सा डिपेंडिंग ऑन विच दोषा इज इन्वॉल्व. सो दैट इज वाई वी हैव टू लर्न दिस. हियर आचार्य सेज शूलादि जो यहाँ पर लक्षण दिया है, दिस इज मंदबुद्धि प्रबोधनार्थम. So for those who do not understand what is Vaivadi Brushakopatah, to make them understand, he gives the examples. These are the examples. But if you are having the Pravara Buddhi, if you feel like you have your own intellectual power to understand everything, then इस श्लोक वगैरह जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. By knowing that it is Vata dominant, you will easily analyze. Without the involvement of श्लोक also आपको पता चल जाएगा. For that your basics should be strong. नहीं, अगर आपको लग रहा है आप मंदबुद्धि है, सब कुछ आपको रेडीमेड चाहिए, तो ये एक रेडीमेड इन्फॉर्मेशन है. इस तरह से मंदबुद्धियों के लिए उदाहरणार्थ दिया हुआ है. बिकॉज द शास्त्र इज रिटन विथ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लक्षण कॉल्ड एज त्रिविध शिष्य बुद्धितम. एक शास्त्र कैसे होना चाहिए? शास्त्र ऐसे होना चाहिए कि all kinds of intellectual people, it could be higher, middle or lower intellectual people, should be able to understand the concept. So to meet that criteria it is written. वो पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ये पॉइंट आपको शास्त्र लक्षण में पढ़ना है. There is a concept called as Shastra Lakshana in the syllabus where you are going to study about the different features of a Shastra. So there one of them is Trivida Shishya Buddhitam. So in this way, the initial 9 shloka we have completed. We are going to continue this in the next part. उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि आगे इसका चिकित्सा क्या करना है and other related aspects of अजीर्ण, मात्रा, क्षिति, अध्याय, etc. So before going into the conclusion, let us see the questions related to this topic. Only these 9 shloka what we have seen, how the questions can come. What is the सम्यक आहार मात्रा in case of लघु द्रव्य? So ये MCQ के हिसाब से नाति तृप्तता. In case of गुरु द्रव्य, it will be न अति सौहित्यम. These terminologies are important. How the MCQ options will be there, that depends on the examiner. I am just giving an idea कि कौन से शब्दों के ऊपर आपको ध्यान देना है कि आपको MCQ की क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाए. एंड श्लोक विच टू लर्न, इट इज डिपेंडिंग ऑन यू. द चैप्टर मात्रा क्षिति इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें बहुत सारे श्लोक आपको देखने को मिलेगा. सो वट एवर वी हैव स्टडीड, द विसूचिका एंड अलसका डेफिनेशन यू शुड लर्न. दैट इज कंपल्सरी. दोनों जो है, दैट इज विविधैर वेदनोद्भूय भेद इन केस ऑफ विसूचिका, एंड प्रयाति नारुदम नादस्तात, वो वाला श्लोक जो है अलसक के लिए, दैट इज कंपल्सरी. अदर थिंग्स डिपेंडिंग ऑन योर इंटेलेक्चुअल पावर आप डिसाइड कर सकते. सो देन हीन मात्रा आहार जो है कौन सा दोष प्रकोप करेगा? डोमिनेटली वात दोष. whereas the other one is for tridosha. So which among the following are considered as ama pradosha vikara? I did not mention this. ये जो अलसका एंड विसूचिका है, ये दोनों को हम आम प्रदोषज विकार के नाम से जानते हैं. So we are going to study this in the next parts. So just remember, आम प्रदोषज vikara refers to alasaka and visuchika. There are so many diseases in relation to agni, agnimandya, the अजीर्ण एक्सेट्रा. बट अगर टर्मिनोलॉजी आम प्रदोषज विकार है तो यूजुअली इट इज रेफरिंग टू अलसका एंड विसूचिका, इसलिए मैंने इसको दिया है. एंड 5 मार्क क्वेश्चन कैन बी पॉसिबल. राइट द सामान्य संप्राप्ति लक्षण ऑफ अलसका एंड विसूचिका. आई थिंक दिस कैन बी मैनेज्ड. 10 mark question not possible from the discussed point, so that could be sufficient for today. So in this way we have seen the important points related to matra shitiya, the introduction part. So in the coming parts we'll be analyzing all of them.
remaining part. So if you have any doubt in between this shloka, it could be a word, it could be a line, it could be half part of a line, anything, आपको वो सारे क्लैरिफाई करके ही आगे बढ़ना है, अदरवाइज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी मिस्ड. टीका एंड ऑल आर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. आपको कोई जबरदस्ती पढ़ने की वो नहीं है, नियम नहीं है. इट इज लेफ्ट टू यू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. So if you can understand the Moola Shloka with its meaning, that is sufficient. Don't read anything else. The Moola Shloka meaning, and if there is any additional information related to that interpretation, that can be read. Otherwise, don't get other chapters in this chapter. जैसे आपके हिंदी इंग्लिश बुक्स में कई बार होता है कि दूसरे चैप्टर के बारे में लिख दिया, तो इस चैप्टर में ऐसे लिखा है, इस ऑथर ने ऐसे लिखा है, तो वो सब जरूरत नहीं है. यू आर स्टडिंग अष्टांगहृदय मीन्स यू स्टडी अष्टांगहृदय. यू आर स्टडिंग मात्राशित्यम, स्टडी मात्राशित्यम. Similarly for Charaka Samhita, when you study Charaka Samhita Matrashiti Adhyaya, read Charaka Samhita Matrashiti Adhyaya. Don't divert your mind saying that Sushrut ने ऐसे कहा, वाग्भट ने ऐसे कहा. नहीं, they are all unnecessary burden for you. श्लोक और उसका अर्थ आना चाहिए, और कुछ श्लोक याद करना है, कुछ श्लोक संस्कृत टर्मिनोलॉजी से मैनेज करना है. If you are not able to understand or learn the shloka, manage with certain Sanskrit terms in the shloka while answering. Make use of flow charts. जहाँ पर भी संप्राप्ति लिखना है, flow chart बनाओ. Make tables, make the boxes wherever possible. Make your answer look good. That is the easiest way of scoring in the examination. Application point of view, we have already seen the shloka from clinical point and the routine life point. खुद के लिए भी चाहिए ये सारी चीज़. तो इस तरह से हम ये जो कोचिंग क्लास है आगे बढ़ने वाले, सो बढ़ाने वाले. सो अल्टीमेटली those who are interested, definitely you can join this and take advantage of this course. So thank you for watching this video. Until next time, thank you.